The program for poverty reduction uses a holistic, integrated approach to poverty alleviation in 14 districts of rural Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan. Financed by the Government of Italy through the Agency for Development Cooperation, with the €40 million soft loan to Pakistan, it is implemented by the Pakistan Poverty Alleviation Fund through its partner organizations. At the heart of the program is the empowerment of communities to plan, create and manage their own development projects. Since 2013, PPR has allowed households to increase their incomes and production capacity. It has enabled communities to develop small-scale infrastructure, providing easier access to safe drinking water, flood protection, secure and stable bridges, paved roads, and renewable energy projects. Sustainability lies at the foundation of the program. Through the establishment of the olive supply chain in target areas, Italian skill transfer has opened up new markets to Pakistani farmers and increased outputs from their lands. And the Youth Communicators for Development program has trained university students from target areas to become effective leaders, communicators, and agents of change for their communities now and into the future. Pakistan is a fairly large country. It's the fifth largest country in the world. People think that it's a homogeneous country. No, it's an incredibly diverse country. We should all celebrate this diversity. From the highest mountains in the world to the Indus Delta, 70 languages, different religions, all of those things that you can imagine in terms of diversity are present in Pakistan. We did this whole exercise called the Geography of Poverty, where we actually took government data and mapped it onto the map of Pakistan. What emerged was a very uneven country in the sense that there are areas which are relatively better off, and then there are areas which are high incidence of poverty and high incidence of food insecurity and low human development. And we color-coded them red, orange, green, blue. Blue being relatively better off and red being the worst districts. If you were to look at the Italian funded districts, they're pretty much in the red and orange areas. In Balochistan, KP and the FATA, which is the federally administered tribal areas, which is now part of the KP province. This project has been looking at 3 territories at the time, from the sea up to the mountains, and in between this plain area that follows this extremely historical path where so many different pieces of history developed. With it, the diversity in their cultures, their music, their art, their handicrafts, their fables, their stories, all of those things. The people of Chitral, the people of Gwadar, they dream the same dream. They dream about their children, they dream about education, they dream about, having a decent livelihood, about being respected. Chitral is a district that is spread very wide to remote valleys. Different communities, different languages, something like 14 different languages are spoken.
Kalasha valleys are 3 valleys. They are a very small community, about 4,000 people. It is the last remaining population that carries an extremely ancient culture that has resisted the assimilation into the larger community around. कलाश लोग एक कौम का नाम है सर। हमने सादी पुराना कलाश कौम है। हमारा परदादा ने चित्राल में आया था। सिकंदर आजम के वक्त हम चित्राल में तशरीफ लाया था। अभी 30-35 साल 40 साल लोग ही, तो हम 40 साल पहले कुछ यहाँ कलाश लोग 16 घराने के लोग था। अभी हम 180 घराने तक पहुँच गए हैं। तो इसी तरह अल्लाह की मेहरबानी से हमारा कल्चर दुनिया में ये यूनिक कहता है, इसको बहुत इज़्ज़त से लोग इसको पुकारता है, बहुत इज़्ज़त की निगाह से लोग देखता है। हम पहले के हालात से बहुत बेहतर हालात आजकल हमारा तब्दीली आया है। तब्दीली ये तंजीम साजी से शुरू हुई है। जब तंजीम बना है तो इदारा एक RSP से हैसो साहिबान आकर कहा है कि यार आपका तरक्की हो जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहो, तंजीम बनाओ, इत्तिफाक करो, इत्तिहाद से एक जगह पर बैठो, जो फैसला करोगी मिलकर करोगी। तो अल्लाह की मदद से हम लोग उसी तरह हमने उस पर अमल किया है, करके बिजलीघर बनाया था अपने मरताब से। फिर बिजलीघरों में आया है, आने के बाद लोग अपने घर में चुनाव किया है, थोड़ा पेंटिंग किया है, तब्दीली का आगाज शुरू हुई थी। What I found extremely interesting is the way that the ideas that came up from within the communities were actually the ones that were developed inside the project. Poverty is not homogeneous. So you want to make sure that you have right instruments for the nature of poverty. So there are some people who are entrepreneurial poor who just need access to finance. So you provide access to finance through starting off with an interest-free loan and then linking them up to commercial microfinance. Some people don't have anything and they can't even start a business. Think about it. So we provide them with an asset that they have some skills of maintaining, like a buffalo or running a shop or running a lathe machine. The woman could have actually done this as an apprentice, but now doesn't have an asset to continue that form of business. So we provide that, and I think about 9,000 assets were provided under this project to the most poorest of the poor. यहाँ पे ज़्यादातर लोग मच्छी का काम करते हैं। मैं पहले बेरोजगार था, पहले मैं काम नहीं करता था। NRSP की तरफ से, PPR की तरफ से जो एक ट्रेनिंग होती थी, मुझे बुलाया ट्रेनिंग के लिए। मैंने फाइबर का काम सीखने के लिए मैंने ट्रेनिंग किया, 15 दिन का ट्रेनिंग किया मैंने। फिर वहाँ पे जाके मैंने सीख लिया 15 दिन के अंदर, अच्छा खासा मैंने सीख लिया। फिर मैंने आइडिया लगाया कि मैं खुद क्यों काम नहीं करूं। मैंने फिर खुद काम शुरू किया। जब मैंने काम ये स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरा फैमिली भी चल रहा है और अच्छा खासा मेरा कमाई भी है माशाल्लाह। मैंने तकरीबन एक लड़का है जो 30 दिन का उसका ट्रेनिंग था, मैंने उसको सिखा दिया, वो अभी ट्रेन हो गया माशाल्लाह, मेरे साथ काम भी कर रहा है। उसका नाम रमीज़ है। मतलब को हर बिती मतलब को किस पर तो वो मसाइल हो शोनी हर बिती आवाज मतलब AVDP KRSP वाला मत क्या कारोबार के प्राणी थे सब बिती क्या दिखाने था ना हवा हमू बारा सोचा रहे था कि मतलब आया मत जाम बोई रे Anis aşkına respat eskoriyorsun ki na hes spaprușteamuș ducan nu și spasoma. Te duri are neren soze, duri la haștani.
Anı sahar ka zararnan ki asurası soyt kön ki avadi savzeye ralti lakum mat edi bezemini ra. कुरो को ना इस पर मतलब खुला नु तो कुरो भी मजदूरी थी कोई ना खवातीन दूर आता नासुर ना बेरोजगार मतलब कोई किस क्या करूँ नु बयान ना हर बिती मजबूर साबुन होते थी मजबूर बसियान मतलब कोई की तंते क्या गानी को थी इस पर वो मजबूर बसियान ना इस पर खुला नु ना से कांदूर भी यार इस पर देर की रोशमज मतलब हर बिती इस पर मुश्किल बयान ना हर की इस पर तंते की होई ना इस पर जाम बोया से ना का इस पर वो था क्या होई मतलब इस पर ये शामिल सोचे को पैसे सोचे को तारीखा गोया ना Anı sato sonra fuktan karço es koynan la. Zara to koynan bezemini ni ka kya angiti be shawai angoyan ni ka shushu trangoyan ika zap angoyan ika party angoyan awatan te bezemi man. Bezemi atan te diko bu koşan boyan tan ajilen zara to di koynan tan duro zara to koynan talim donyan. मतलब क्या बात की है इस मदद तो इदारा वाले इस पर मदद कोरी को वजन दी थी मतलब हम अगर किराएदार दिन नेज़े थे हम नेज़ी आने से जुखाल दुकान इस पता नेज़ दुकान ले गई मतलब आने से इस पर पता हो कि कारोबार है क्या शेर क्या नूरे अल्लाह उसम शुक्र कि ना ब्रार मतलब को कि टूरिस्ट किया आनी ना मतलब इस पर को पैसे हो चेहरा क्या कल्चर लिबास ही नहीं हेरा बहुत फायदा बयान ना ज़्यादा फायदा बयान मतलब को किस पाए गुजारा बहुत ज़्यादा बयान आने से मुझे जुबरार चतरा सबक रही आते तान देते गुजारा बयान हम वाजन देती नो किस पास सबक रे कोनो बेटा ना कुरो को बेरोजगारी हो शुई आने से अल्लाह उसम शुक्र मैं ब्रार अभी एक और अरे ये ब्रार एफ है बयान ना निंदू का सुरबंदरा मनी कारोबार साज है ना बैंजो सरोज वो कारोबार हमें पनकारी है ना मुस्कारी पेड़ तो का है भले अन्नी हमें प्रोजेक्ट तेता चे इसी मददता चे हमें रास्ते का मैं ये सरोज को था बैंजो को था मैं तो का हमें साज हो जाया चे बेहतरी का मु अतका इसी हम स्टूडियो बढ़ते करना स्टूडियो बनाने एल्बम रिकॉर्डिंग मैं इस्तेमाल करने गया नहीं और प्रोग्राम मदनी न बर गया नहीं We are not like a single sector intervention organization that okay we are doing education only. No, invariably these are remote communities. There is a demand for public goods, which is infrastructure, and that could be different. It could be a road, it could be irrigation channel, it could be microhydel, whatever it is. So that is then the public good which is benefiting the whole village. So that's why that intervention is very important, and we've done about 1400 of those, all demand driven. गुर्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं जिस गांव में रहती हूँ सर यहाँ पे तकरीबन 60 घर है ना टोटल। जो घर के जो अफराद हो गए शहर उनको लेकर उनको इकट्ठा हो करके 300-400 होंगे इसी गांव में। बारिश होती थी ना तो वो कीचड़ ज़्यादा होते थे, पानी ऊपर वो होता था। फिर वो पानी अक्सर हमारे यहाँ तो गुर्बत है ना सर, गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पानी अच्छे घर नहीं बनाते हैं सर। वो तो जो पानी होता है वो अक्सर घरों के अंदर जाता था। बहुत बारिश में सर्दियों में भी बहुत मसले होते थे, गंदगी होते थे ना, फिर उससे बीमारियाँ भी फैलते थे। अक्सर छोटे बच्चे होते हैं सर, वो बाहर खेलते हैं तो फिर उनके कपड़े भी गंदा होते हैं, कीचड़ पड़ते हैं। इसलिए हमने सोचा कि अक्सर ये पानी अंदर बहुत ज़्यादा जाता था सर, घरों के अंदर जाता था। हमने सोचा कि अगर इसको पुख्ता बनाएंगे तो ये घरों के अंदर तो नहीं जाएगा ना। तंजीम बना के हमने PPF वालों को कहा कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, गलियाँ पुख्ता होना चाहिए ताकि ये पानी जो है सीधा दरिया के पास जाए, गंदगी ना हो। गाँव में कोई बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो उनके कपड़े गंदा ना हो, बीमारियाँ ना हो। और यूनकौसर साकरान एक एग्रीकल्चर एरिया है और लोगों का ज़रिया माश ज़रात से ही है। एग्रीकल्चर के हवाले से यहाँ सहूलत ना काफ़ी है।
हब डैम का पानी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन दूर दराज के एरिया की वजह से पानी ज़मींदारों तक नहीं पहुँच रहा है। PPF के साथ हम पार्टनर हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने हमें तंजीम कारी के ज़रिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे साथ पानी चल रहा है, वाटर चल रहा है। ये पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड की ताउन से बनाया गया है और यहाँ के लोग जो है ना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उनकी जो है ना फसल जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। पहले यहाँ गंदम और कपास की फसलें हो रही थी, पानी जो है ना वो कम पहुँच रहा था, तो उस हिसाब से वो कम जो है ना वो फसलें लगा रहे थे और काश्त कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पानी की मिकदार उनके पास सही तरीके से वाफिर मिकदार में पहुँचेगा तो वो अपनी आबादी जो ज़मीन बंजर थी उनको आबाद कर रहे हैं और आबादी के साथ उनकी पैदावार भी बढ़ रही है, जिससे वो ज़मींदार और उसके हारी किसान और जो मज़दूर पेशा है उनको भी रोज़गार मिल रहा है और उनकी जो ना वो ज़िंदगी में वो अच्छी जो ना वो फ़र्क पड़ रहा है। Human development is, that's how you measure success. Globally, the Sustainable Development Goals are pretty much about health and education and gender empowerment. So there you have to have those kind of interventions as well, because these people being remote have not benefited from public goods or even private sector like they should have. So this project has allowed over 100,000 girls to go to school, from the support, health centers being available to them. कोरोना वायरस के बाद तो सारे स्कूल्स छुट्टी हो गए हैं और स्कूल में मतलब हफ्ते में एक दफ़ा जो है एक स्टूडेंट जाते हैं, मतलब एक ही सब्जेक्ट के एक ही क्लास के या 1 या 2 किसी के भी, और वहाँ जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है। तो वो यहाँ आते हैं तो हम उनके साथ वो होमवर्क करते हैं। पहले तो एक ही स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के वहाँ से जो होमवर्क होता था वो घर में आके करते थे, लेकिन जिन बच्चों के घरों में जो एजुकेटेड पर्सन नहीं थे वो मतलब ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। स्कूल में ऐसा होता है कि मतलब इतने सारे बच्चों को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि वो मतलब इतना कमज़ीन होता है और वो तेज़ी से जो किसी भी टॉपिक को पिक नहीं कर पाता है। यहाँ आके उसके साथ बार बार ये कोशिश किया जाता है कि इसको भी समझ में आए। जब मैं मास्टर कंप्लीट करके यहाँ आई तो मुझे बता दिया गया कि लर्निंग सेंटर में जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए आपको वहाँ बुला रहे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाने का मुझे मौका मिला है। बहुत ज़्यादा खुश है। वो बार बार मुझसे मिलते और कहते हैं कि हमारे बच्चों में इतनी ज़्यादा वो हो गई है कि वो घर में आके भी किताबें अपने सामने रख के पढ़ाई करते हैं। पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले यहाँ के सिर्फ टीवी वगैरह देखते थे, अब वो सब बहुत खुश है। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 लड़की और 1 लड़का। मैं अपने हाउस वाइफ हूँ, अपने घर में छोटा मोटा काम भी करती हूँ। मेरे शौहर फिशरीज हैं, माहीगीर हैं। जी पहले हमारे शौहर दूसरों के यहाँ मजदूरी करते थे, जैसे हम लोग बोलते हैं जानशू। पहले वो जानशू थे, दूसरों के यहाँ मजदूरी करते थे। वहाँ हफ्ते में 1000 मिलता था, कभी हफ्ते में कुछ नहीं मिलता था। फिर PPR की तरफ से हमें बोट मिला, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बचत नहीं होता था पहले हमारा, अब माशाल्लाह से बचत भी हो रहा है। बच्चे स्कूल पहले सरकारी में पढ़ते थे, अब मैंने वहाँ से निकाल के TCF में मतलब वहाँ पर दाखिला करवाया। बेटियों के लिए मैंने बहुत अच्छा सोचा है। मैं ये चाहती हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी बेटियाँ पढ़ें। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने FA किया हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ 5 साल अपनी ज़िंदगी में स्कूल गई हूँ। उसके बाद मैंने प्राइवेट एग्ज़ाम दिए हैं, FA क्लियर किया हुआ है मैंने। अब मेरी एक ख्वाहिश है कि मैंने नहीं पढ़ा, मेरी बच्चियाँ पढ़ें।
ये है कि मैं अपना बचत बनाऊँ और मेरे बच्चियाँ पढ़ें, उनकी छोटी सी उम्र में शादी नहीं करवाऊँगी, बिल्कुल ये मेरी सोच भी नहीं है। ये क्वेटा तक जाना चाहती हैं पढ़ाई के लिए, मेरी ख्वाहिश है मैं इनको भेजूँगी। मेरा एतमाद बिल्कुल अपनी बच्चियों पर है, मैंने इनको बताया भी है, ये मेरी बच्चियाँ नहीं मेरी भरोसा हैं। PPR प्रोजेक्ट की तरफ से हमारे इलाके में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। यही है कि हॉस्पिटल है BHU। यहाँ पहले ये इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, ना होने के बराबर था, लेकिन आजकल NRSP और PPR ने यहाँ सोलर सिस्टम दिया है, UPS सिस्टम। मलेरिया के टेस्ट के लिए हम लोग ग्वादर चले जाते थे। जैसे ग्वादर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। जैसे कोई बंदा चले जाए तो 15-2 हज़ार रुपये उनका खर्चा हो ही जाता था ग्वादर के लिए। अब NRSP की तरफ से PPR प्रोजेक्ट पे यहाँ पे मलेरिया का टेस्ट भी होता है, अवधियात भी मौजूद हैं। पहले तो हमारे पास 3-4 बेंचें थे, बेडें थे, लेकिन आज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सही है, 18-20 बेडें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो रहे हैं। यहाँ एक हफ्ते में तकरीबन 600-700 के करीब पेशेंट आते हैं। बिजली पहले हमारे पास थे वापड़ा के, वो भी सुबह के टाइम हम लोग यहाँ OPD करते थे, बिजली चले गए थे। लेकिन अभी अगर वो बिजली नहीं होएंगे, हम सोलर की बदौलत अपना टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। Italia e Pakistan sono sempre andati profondamente d'accordo, sono due paesi che condividono molti valori fondanti, abbiamo costruito molto insieme, ma senz'altro esiste lo spazio per costruire. Qui abbiamo un paese di 220 milioni di persone, al 70% sotto i 30 anni, quindi una popolazione giovane e che per sua natura è destinato a crescere. We work all of us as a full team between the AICS and PPF. It's been a fantastic partnership, wonderful. You know, one could have not asked for a better partner than the AICS and the government of Italy, of course. And I want to thank the people of Italy and the government and AICS for the support. What is going to be interesting is try to understand what will be the way the communities themselves will take from the project in order to look into their governance and in order to reutilize whatever came out of their talents or their vocations in order to have better living conditions. We need to ensure that all these interventions remain sustainable. Are the girls still going to school? Are the teachers still coming? Those are the kind of things we would like to ensure. And you know, now that we have this outreach into those areas and we have sources of finance, that we will ensure that they continue. And we will measure our success or failure based on maybe 2 or 3 years after the project. And then this is a lesson that perhaps we need to inculcate within all development work, is to ensure that the longevity of the intervention, the impact, the outcomes, those we don't forget. Otherwise, all we become is like, okay, so this is how much money we dispersed and this is how many schools we made, the numbers and the numbers and the numbers. Numbers are useful, but the numbers are not the end in itself. It's the outcome. You know, what has that family benefited? Is the woman now empowered? Can she go to market, sell her, handicrafts, whatever? That is how we judge, sustainability and longevity.